When you get into emergency, you have known that you are going through whatever, tachycardia or bradycardia, whichever, but you have been going through that phase and you were experiencing it within your body, but you didn't do anything to actually strengthen yourself. You were just hoping that nothing will happen to me and I don't want to take medicine. This is not right. So what I'm saying is, once an emergency comes, you don't have a choice. There has to be, whatever is the current procedure, current norms has to be followed. But before that emergency, you had a lot of time to correct yourself. Now, because there was a word called tachycardia, bradycardia, or atrial fibrillation, or whatever, these words are not what you experience. Sugar level is not what you experience. What you experience is anxiety. What you experience is unstableness. What you experience, if you understand the disease in terms of your experience and loss of quality within you, you have the power to correct it. But if you understand the disease in terms of atrial fibrillation or whatnot, you don't know, you don't have a clue. Agar main aapko bolun, please smile. Can you smile? You have the power to smile. But if I tell you, you have 165 glucose level, bring it down to 160. No, what is this? So we have got into a world where we don't understand what is happening to us. And this is modern medical science. They have taken the life out of our hand. And this is a strong word I am saying. But बुद्धिमानी होती तो हम ये काम नहीं करते. So what I am saying is, please understand the disease in terms of your experience and the quality that you are experiencing. और मैं आपको बहुत सिंपल से बताऊं, in a very, very simple word, if your heart beat is not proper, what have you lost? क्या खो गया? You have lost the rhythm of your life. आपने अपने जीवन में लय आपका खो गया, जीवन का लय खो गया. Rhythm, balance, strength, these are three things that you have to inculcate or bring in your body. भाव, राग और ताल कहते हैं इसको. भारत, आपके देश के नाम में ही हेल्थ जुड़ा हुआ है, आप उसको डिकोड ही नहीं कर रहे. आप इंडिया बोल रहे हो. इंडिया डजंट मीन एनीथिंग. भारत मीन्स establishing भाव, राग and ताल of every life which is here, present here. आपके साइंटिफिक पुरखों को तो आप मानते नहीं हो, और आज का जो फजी साइंस है उसको तो आप बहुत ज्यादा मानते. तो बीमार से बीमारी हुए जा रहे हैं. कौन ठीक हो रहा है बता दीजिए ना. मैं आपको पूछ रहा हूं, प्रूफ दीजिए कि हेल्थ अच्छी हो रही है लोगों. गिव मी अ प्रूफ. नहीं हो रहा. तो इफ यू स्टैब्लिश द रिदम ऑफ योर लाइफ, रिदम कैसे स्टैब्लिश करेंगे? अगर आप डांस करते अपनी लाइफ में ना, अरे आपने भरतनाट्यम सीख लिया होता, कथक सीख लिया होता, तो आपको एट्रियल फिब्रिलेशन नहीं होता. अगर आपने क्लासिकल म्यूजिक सीख लिया तो नहीं होता. अगर आप भजन कीर्तन कर लेते तो शायद नहीं होता. अगर आप जीने का तरीका एक लयबद्ध तरीके से जीते, आपके पूर्वज तो करते थे ना ऐसा. सिर पे 5-5 पानी के मटके लेके औरतें गाते हुए जाती थी. Nobody would do work without singing. आपके लोकगीत तो आजकल शायद क्लाउड के मेमोरी में रह गए, आप गा ही नहीं रहे. In the name of lifestyle, we have just destroyed how human beings should function. In the name of logic, we have destroyed the creativity of human body, of human mind. तो लॉजिक जो होता है ना, वो शॉर्ट टर्म थिंकिंग देता है. पैरेलल थिंकिंग के लिए आपको क्रिएटिव होना होता है. पैरेलल थिंकिंग स्टैब्लिशेस व्हाट यू कॉल एज रिदम ऑफ लाइफ. अगर रिदम नहीं होगा तो एट्रियल फिब्रिलेशन तो होगा साहब. तो आपके बीट्स मिसिंग भी हो सकते हैं, तो आपके पल्स रेट में प्रॉब्लम आ जाएगी. तो आपने क्या संस्कारित किया इस शरीर को? हैव यू क्रिएटेड द रिदम ऑफ योर बॉडी? अगर रिदम नहीं क्रिएट करेंगे
तो आपके भाव भी नहीं खुश होंगे। आज खुश होने में तकलीफ हो रही है ना, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर विद यू, लॉट ऑफ मनी इज देयर, आप कुछ भी अच्छा खाना खा रहे हैं, काइंड ऑफ फूड दैट यू आर ईटिंग, द काइंड ऑफ क्लोथ्स दैट यू आर वेयरिंग, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी खुश होने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। किसी को घुट्टी लगानी पड़ रही है, किसी को गप्पे मारने पड़ रहे हैं, किसी को कुछ ऊट पटांग करना पड़ रहा है, एक छोटी सी खुशी नहीं हो रही हमारे। सो लेट्स कम बैक टू टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ दैट, टेक्निकल एस्पेक्ट उसके पे आ जाते हैं, राइट। सो 3-4 थिंग्स दैट नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड। ऐसे नोड को एक्टिवेट कर दिया, कोई भी ट्रिगर दे देंगे बॉडी को तो एक्टिवेट हो जाएगा। आप कुंभक भी ट्रिगर का काम करता है, आपके ऐसे नोड को एक्टिवेट कर सकता है ना। आप इलेक्ट्रिसिटी देके किसी ऐसे नोड को एक्टिवेट कर रहे हैं, कुंभक करके भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आप बहुत तरीके से ट्रिगर दे सकते हैं, बट हमने ना केवल एक तरीका अपनाया, बाकी सारे तरीकों को साइड में रख दिया। तो ये प्रॉब्लम होती है जब ओरिजिन, जिस साइंस का ओरिजिन जहां से हुआ वहां से चुरा के जब साइंस को ले जाते हैं लोग, जब वो साइंस पे काम करते हैं तो चुराई हुई चीज तो हजम नहीं होती साहब, उनको मालूम नहीं साइंस, हमको वापस लेना पड़ेगा तब जाके ये ठीक होगा। अब आते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट पे इसके कि आपको टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया होने के लिए क्या प्रॉब्लम आनी चाहिए आपके बॉडी में। 2-3 चीजें मैं बता रहा हूं। पहली चीज, अगर आपके शरीर में मेटाबॉलिक डिफिकल्टी आती है तो ये आपको देखने को मिलेगा कि आपके हार्ट रेट चेंज होते हैं। मेटाबॉलिक डिफिकल्टी हमेशा ये क्रिएट करती है। दूसरी चीज क्या क्रिएट करेगी टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया, अगर आपके शरीर में जल तत्व, वाटर लेवल्स जो होंगे वो ठीक नहीं होंगे। यानी कि अगर आप कोई ऐसी चीज खा रहे हैं विच इज नॉट योर फूड, नॉट योर ओरिजिनल फूड, तो आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है। यानी आप एंटीबायोटिक खाते हैं, केमिकल मेडिसिन खाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खाते हैं और खराब एनवायरनमेंट में रहेंगे तो आपका शरीर डिहाइड्रेट हो जाएगा। ऐसे समय में टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया बढ़ जाता है। आप वैसे भी अगर दस्त लग जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाए बॉडी में, तो आपको थंपिंग साउंड फील होता है हार्ट का। तो जब भी बॉडी डिहाइड्रेट होगी आपका हार्ट सबसे पहले इंपैक्ट होता है। और आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं, एस इनहिबिटर्स ले रहे हो, डायूरेटिक ले रहे हो, यानी आप हार्ट अटैक क्रिएट कर रहे हो। तो आपको समझना पड़ेगा, दिस इज व्हाई आई एम सेइंग, आप जल तत्व आप देखिए आपके शरीर में कम होता जा रहा है। जब भी अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, जल तत्व कम होगा, हार्ट डिजीज आता है। आप कोई भी दवाई खाएंगे आपको हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये कोई कोरिलेट नहीं कर रहा, क्योंकि साइंस अभी इतना वाइड देख ही नहीं पा रहा, क्योंकि उनके पास बेस नहीं है वाइड देखने के लिए। तो अगर भारतीय लोग साइंस करेंगे तब वो इन चीजों को देखेंगे, तब जाके आपको और भी थेरेपीज मिलेंगी, और भी नए नए तरीके मिलेंगे, और रीजन पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक और चीज है, जब भी एंजाइटी लेवल ज्यादा बढ़ा देते हैं, सोशल एंजाइटी जब बढ़ जाती है, तब भी आपको ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया या एंजाइटी आपको ज्यादा मिलेगा। तो अगर आपकी फैमिली सिचुएशन ठीक नहीं है, ऐसे में भी आप ऐसी सिचुएशन में आ सकते हैं। आप कॉमन तरीके से कोरिलेट कीजिए, आप एक बहुत डरावनी मूवी देखेंगे या आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए जो बहुत अच्छी नहीं है, तो आपका मुंह सूखने लग जाता है। आप डर जाते हैं तो मुंह सूखने लग जाता है। तो मुंह सूखने लगेगा तो आपको ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया, ये दोनों ना एक दूसरे के पूरक हैं। एक होगा तो बॉडी दूसरा क्रिएट करेगा, फिर दूसरा होगा तो पहला क्रिएट करेगा। इस तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करता है। अगर आपके अंदर बैलेंसिंग स्ट्रेंथ नहीं है, रिदम पहली बात बताया, दूसरा क्या बताया, बैलेंसिंग स्ट्रेंथ नहीं है, तो भी ये फ्लक्चुएट करेगा। कई लोगों में ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करते हैं। तीसरा है स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड रिदम, यही बताया, भाव, राग और ताल। ये आपका शरीर के अंदर मैकेनिज्म दिया हुआ है जिससे कि आप इसको स्टैब्लिश कर सकते हैं। कुंभक वही तरीका है, कुंभक आपके शरीर का ही मैकेनिज्म है। इन सभी 6 बल होते हैं हमारे शरीर में, षडबल स्थापना इसे कह सकते हैं, कुंभक वो काम करता है। देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल और ओजस बल, इन बलों को अगर स्थापित करेंगे तो ये बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। ये कोई बहुत तोप चीज नहीं है ठीक होने की, ये बहुत आसानी से इट कैन बी टेकन केयर। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, establishing your body is the urgent requirement of this time, because you can't avoid a wrong kind of an environment. वातावरण से भाग के क्या मार्स में जाएंगे आप?
ये वातावरण तो खराब कर ही दिया ना हमने, ये भोजन तो खराब कर ही दिया ना हमने। दवाइयां बचपन से आपको आप नहीं लेंगे, आपकी सरकार जबरदस्ती वैक्सीन दिलवा देगी, डब्ल्यूएचओ आपको लॉ जारी कर देगा, तो आप तो मजबूर हैं कि आप वो केमिकल्स आपको अपने शरीर में डालना ही है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, केमिकल्स एंड रॉन्ग काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल एंड सोशल सिचुएशन आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप कैसे बचेंगे? जब आप झेलने लायक बन जाएं, अपने को झेलने लायक बना लीजिए, आप बचे रहेंगे, वरना कोई चारा नहीं है। विल इट कम अगेन? यस, इट विल कम अगेन, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग to improve the strength of your system. So will it happen again? Yes, it will happen again.